ناظرین آداب، بدلتا منظر کے شمارے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ریاست جموں و کشمیر میں عوامی خدمات سے منسلک شعبہ جات کی بدلتی رفتار کا سرسری جائزہ پیش کیا جائے۔ آئیے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں اس شمارے کے اہم موضوعات پر۔ سری نگر میں پہلی بار فارمولا 4 کار شو کا انعقاد۔ کشمیری فن و دستکاری کو فروغ دینے کے لیے GI مہوتسو نمائش کا انعقاد۔ پنچ میں بارڈر بیٹل ہاکی کپ کا فائنل اور اختتامی تقریب۔ کشمیر کی کاسمیٹک انڈسٹری نوجوانوں کے لیے روزگار کا نیا وسیلہ۔ راجوری کی گجران پنچایت میں مفت میڈیکل کا انعقاد۔ سری نگر کی تاریخ میں اپنی نوعیت میں پہلی دفعہ میں للت گھاٹ سے نہرو پارک تک فارمولا 4 کار کا ایک گرج دار شو منعقد کیا گیا، جس میں معروف فارمولا ڈرائیوروں نے شائقین کو محظوظ کیا۔ یہ بلوارڈ روڈ پر دیکھنے کے لیے ایک پرکیف شو تھا، جسے دیکھنے کے لیے لوگوں کی ایک بہت بڑی بھیڑ امڑ آئی۔ سری نگر میں منعقدہ اس ایونٹ پر وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی تعریفوں کے پل باندھے۔ جموں کشمیر کے گرمائے دارالحکومت سری نگر میں ڈل جھیل کے کنارے پر فارمولا 4 کار شو کا انعقاد کیا گیا، جس میں بیرونی ریاستوں سے کار ریسرز نے حصہ لیا، جن میں ہنرمند نوجوان شامل تھے۔ یہ کار شو ڈل جھیل کے کنارے بلوارڈ روڈ پر منعقد ہوا۔ نہرو پارک سے للت گھاٹ تک کھلاڑیوں نے کار شو کے دوران دل فریب منظر پیش کیے، جسے دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ امڑ آئی۔ ایونٹ آج کی ڈیٹ میں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بدلتا جموں کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو اسٹیٹ آف دا آرٹ چیزیں ہیں تو وہ ہم سب کو جو ہے دکھا رہے ہیں۔ بس اس کا ایک ہی کہنا ہے میرا کہ جو اگر یہ مان لو اسٹنٹ بھی پرفارم کر رہے ہیں تو آپ لوگ نہ کریں، کیونکہ یہ سب لوگ ایکسپرٹ لوگ ہیں، تو ایک بار آپ اس لیول پہ پہنچ جائیں اس کے بعد آپ کو جو کرنا ہے کریں، لیکن اس کو بس اس حساب سے نہ دیکھیں۔ ہاں یہ دیکھیں کہ ایک جو چیز جو پورے ورلڈ اوور دکھائی جاتی ہے، جو ہوتی ہے، ہمارے جموں کشمیر میں اس میں کہیں پیچھے نہیں ہے۔ فارمولا 4 کار شو میں شرکت کرنے والے کھلاڑیوں نے کہا کہ ڈل جھیل کے کنارے فارمولا کاریں دوڑانا ان کو بہت دلچسپ لگا، کیونکہ ڈل اور اس کے گرد و نواح میں زبرون پہاڑ دلکش منظر پیش کر رہے تھے، جس سے وہ محظوظ ہوئے۔ It feels really very great to be driving over here in Srinagar, and I would like to thank RPPL and JK for organizing this event. Really grateful, and first time Formula cars are going to be driving around Srinagar. It'll be very exciting and very fun, and the locals will love it. Yeah. اس کار شو کو جموں کشمیر کے محکمہ سیاحت نے منعقد کیا تھا تاکہ کشمیر کی سیاحت کو فروغ مل سکے۔ کار شو کو صوبائی کمشنر وجے کمار بدھوری نے افتتاح کیا۔ اس موقع پر محکمہ سیاحت کے ناظم راجہ یعقوب بھی شامل تھے۔ صوبائی کمشنر وجے کمار بدھوری نے کہا کہ ڈل جھیل کے کنارے پر فارمولا 4 کار شو بدلتے کشمیر کی ایک جھلک ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس کار شو کا اہتمام کرنے کا مقصد کشمیر کے سیاحت کو فروغ دینا ہے، جبکہ اس سے کشمیر کے شعبہ سیاحت کو مزید تشہیر ملے گی اور بلوارڈ کار ریسنگ کے نقشے پر آئے گا۔ Basically, this is to involve people in the right way, to promote racing in the right manner, that it should be done where it should be taken to the track. This is also to encourage the youth that please don't do this on the streets. It has to be done at the right place at the track. Like جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے باہر جگہ بند کی ہے پرمیشن لے کے، اور وہ اسی کارن ہے تاکہ بتانے کے لیے کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے it will be dangerous for people. So it's basically like a demonstration for everybody to know that please do it the right way and do it in a place where nobody gets hurt. But we also want to encourage this sport build up. سری نگر میں پہلی بار فارمولا 4 کار شو کے انعقاد پر وزیر اعظم نریندر مودی نے ایکس پر ایک
पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि ये देखकर बहुत अच्छा लगा। इससे जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को मजीद उजागर करने में मदद मिलेगी। भारत मोटर स्पोर्ट्स के फरोग के लिए बेहतरीन मौके फराहम करता है और श्रीनगर इन जगहों में सर फहरिस्त है जहां ऐसा हो सकता है। श्रीनगर के तारीखी दस्तकारी मरकज़ कश्मीर हाट में GI महोत्सव प्रोग्राम के तहत एक दस्तकारी नुमाइश का एहतमाम किया गया। इस नुमाइश में न सिर्फ मकामी दस्तकारों को अपने हुनर का मुजाहरा करने का मौका दिया गया, बल्कि गैर मकामी हुनरमंदों को प्लेटफॉर्म भी मुहैया कर दिया गया ताकि वो भी अपने फ़न का मुजाहरा कर सके। नुमाइश के दौरान GI टैग की अहमियत को भी उजागर किया गया और इससे हासिल कामयाबियों का जिक्र भी किया गया। पेश इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने कश्मीरी फन और दस्तकारी को फरोग देने के लिए कश्मीर हाट में एक दस्तकारी नुमाइश का एहतमाम किया। इस नुमाइश की खास बात ये थी कि इसमें उन दस्तकारी मसनूआत के स्टॉल लगाए गए थे जिन्हें GI टैग दिया गया है। नुमाइश में न सिर्फ वादी कश्मीर के दस्तकारों ने हिस्सा लिया, बल्कि गैर मकामी दस्तकारों को भी प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया ताकि वो भी अपने फन की नुमाइश बेहतर तौर पर कर सकें। सर, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इट गिव्स अ लॉट ऑफ इम्पेटस टू ये जो GI पे है, बिकॉज अवेयरनेस पहले बहुत कम है GI के बारे में। फॉर एग्जांपल शॉल में आप जैसे सोना ख़रीदते हैं, हॉलमार्क ख़रीदते हैं, GI शॉल अगर ख़रीदना है तो GI ख़रीदिए। GI मतलब हैंड स्पन, जिसमें कि बेसिकली हैंड स्पन शॉल, हैंड वोवन शॉल्स, ये इससे औरतों को बहुत बहबूद होती है। इसमें 80% ऑफ द वेजेस, जैसे आप पश्मीना शॉल ख़रीदेंगे GI, उसमें 80% ऑफ द वेजेस गो टू द विमेन हु आर स्पिनिंग दिस पश्मीना। तो और वो जेन्युइन पश्मीना है जिसको ओरिजिनली हमारे माओ दादियों के पास होता था। इस अजीम उशान 3 रोज़ा नुमाइश ने कश्मीर के साथ साथ मुल्क भर के दस्तकारों के इज्तिमा को देखा, जिन्होंने अपनी गैर मामूली हुनरमंदी का मुजाहिरा किया और सदाकत की मीरास का जश्न मनाया। GI महोत्सव ने न सिर्फ हिंदुस्तान के मुनफरिद फनी खजाने का जश्न मनाया, बल्कि कश्मीर की खूबसूरत वादी में सयाहत और इक्तिसादी सरगर्मियों को फरोग देने में भी अहम किरदार अदा किया। नुमाइश के दौरान दस्तकार खुद सफीर बनकर उभरे। दस्तकारों और हुनरमंदों ने GI टैग की अहमियत को काफी सराहा। देखिए, GI प्रोडक्ट में एक खूबी है, कोई भी बायर आएगा, चाहे B2B हो या B2C हो, वो देखना चाहेगा कि कोई भी प्रोडक्ट जो वो खरीदने के लिए या इंटरेस्टेड है तो उसका वो एक्सेस कर सकता है और उसकी वो ओरिजिन देख सकता है, ये कहाँ पे बना हुआ है और कौन सा कारीगर इसको बना रहा है। सपोज़ अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं शॉल का, कानी शॉल, अगर आप उसमें भी देख सकते हो कि कानी शॉल किस जगह पे बना है, किस कानी हामा में बना है, कौन कारीगर बना रहा है। तो आजकल ये सबसे इजी है और एक कस्टमर को, एक बायर को ये हौसला हो जाता है कि मैं जेन्युइन एक प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ। हुकाम ने GI टैग और नुमाइश की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि दस्तकारों और हुनरमंदों की तख्लीकात को सदाकत की महर से नवाजा गया है और सारिफीन को उनकी मसनूआत के हकीकी मय्यार की यकीन दहानी भी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि नुमाइश का मकसद GI टैग मसनूआत को फरोग देना है ताकि सारिफीन तक हकीकी मय्यार की चीजें पहुंच सकें। तो इसका मकसद ये है कि हमारे जो GI प्रोडक्ट्स हैं ये हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए कि अगर आपको हैंडीक्राफ्ट ख़रीदना है, चाहे जम्मू कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट ख़रीदना है या बाहर का हैंडीक्राफ्ट ख़रीदना है, तो वो जो है GI सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स ही खरीदे। मार्केट में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो मिस ब्रांडेड है या जो बेची जाती हैं हैंडमेड के नाम पे, लेकिन GI की एक ऑथेंटिसिटी है और उसमें जो हमने लेबल इंट्रोड्यूस की है, जिसमें QR कोड है, जिसमें आप देख सकते हैं उसके पैरामीटर्स जो आपको पता चलते हैं स्कैन करने से, तो वो एक वाहिद ज़रिया है जिससे आपको एक ऑथेंटिक हैंडीक्राफ्ट और ख़रीद सकते हैं और उससे जो है आप एक जेन्युइन क्राफ्ट्समैन और जेन्युइन क्राफ्ट को प्रमोट करते हैं। तो हमारा मकसद ये 3 दिन का जो GI एग्जीबिशन है वो यही है कि हम जेन्युइन क्राफ्ट और जेन्युइन क्राफ्ट्समैन को थ्रू GI प्रमोट करें।
GI टैग का कीमतों के तयन पर एक तब्दीली का असर पड़ता है जो मुस्तंद मसनूआत की कदर को बढ़ाता है। GI टैग के हवाले से मजीद बेदारी मुहिम चलाने की जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा दस्तकारों तक पहुंचा जाए और उन मसनूआत को भी GI टैग के जुमरे में लाया जा सके जो अभी तक इससे महरूम हैं। जम्मू और कश्मीर के नौजवानों में हॉकी तेज़ी से एक मकबूल खेल बनता जा रहा है और ये सब हॉकी जम्मू और कश्मीर और स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ साथ दीगर इदारों के मुश्तरका इश्तराक और इक़दाम की वजह से मुमकिन हुआ है। इस जज्बे को मज़ीद फ़रोग़ देने के मकसद के तहत पुंछ में हाल ही में बॉर्डर बैटल हॉकी कप का इनेकाद किया गया जिसमें कई टीमों ने शिरकत की। इस टूर्नामेंट का हाल ही में इंतहाई दिलचस्प फाइनल मैच खेला गया। किसने मारा मैदान, किसने दिखा बेहतरीन खेल, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। पीर पंचाल के जिला पुंछ में हॉकी खेल को फरोग देने के मकसद और नौजवानों को मस्बत सरगर्मियों की तरफ रागिब करने के लिए बॉर्डर बैटल हॉकी कप का इनेकाद किया गया। इस कप में मुख्तलिफ टीमों ने जोशो खरूश के साथ शिरकत की। हाल ही में मर्दों के जुमरे में इस हॉकी कप का फाइनल मैच पुंछ और HBFNCR हॉकी एकेडमी सोनीपत हरियाणा के दरमियान खेला गया। ये मुकाबला ऑस्टो टर्फ पुंछ के स्टेडियम में खेला गया। टूर्नामेंट का एहतमाम फौज ने किया था। खिलाड़ियों ने खुशी का इजहार किया। मैं पुंछ की पूरी आवाम का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और सभी स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स और जो यहाँ पे मौजूद टीम है उनका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस टूर्नामेंट को एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट बनाने में हमारी बहुत मदद करी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि स्पोर्ट्स के ज़रिए से पुंछ का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट रहेगा। यहाँ के नौजवान और तगड़े बनेंगे और इस देश का, अपने पुंछ के डिस्ट्रिक्ट का और अपने पेरेंट्स का और इस पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करके हम सबको और आगे बुलंदियों पे लेके जाएंगे। फाइनल मैच में दोनों टीमों ने शानदार कारकर्दगी और खेल का मुजाहरा किया। मुकाबले के दौरान हॉकियां और कंधे आपस में टकरा गए, जिस दौरान इस स्टेडियम में मौजूद तमाशाइयों में अलग ही समा देखने को मिला। बॉर्डर बैटल हॉकी कप के फाइनल मैच में कांटे का मुकाबला देखने को मिला। दोनों टीमों ने 4 क्वार्टर तक मुकाबला किया, जिसमें लड़कों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। हम यहाँ पर पुंछ में फर्स्ट टाइम खेलने आए आर्मी टूर्नामेंट। हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ का जो अरेंजमेंट था काफी अच्छा किया गया है और भी हम ये चाहते हैं कि हमेशा ये टूर्नामेंट कराई जाए, नेशनल लेवल पर भी इस चीज को रखा जाए। आर्मी वालों ने किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। हमें काफी अच्छा लगा। हमें यहाँ पे हमारी टीम बहुत ज्यादा हैप्पी है इस टूर्नामेंट से। सब यही चाह रहे हैं कि आगे यही टूर्नामेंट कराई जाए। इस चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब में लड़कियों ने भी शिरकत की, जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि इस टूर्नामेंट के दौरान उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला। दिलचस्प फाइनल मैच देखने के बाद फातेह खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड याफ्ता दस्तखतशुदा हॉकी स्टिक्स के साथ ट्रॉफी पेश की गई। इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों, जिनमें लड़कियां भी शामिल थीं, को भी इख्तितामी तकरीब के मौके पर एजाज से नवाजा गया। बहुत सालों पहले जब हम छोटे छोटे थे, देखते से कहीं बाहर से टीमें आती थी। बड़े सालों बाद आर्मी का ये अच्छा इनिशिएटिव है कि बाहर से भी जो है टीमें कॉल की हैं, बाहर के प्लेयर यहाँ आके खेलेंगे। हमारे यहाँ के जो प्लेयर्स हैं उनकी गेम को देखेंगे, उनको सीखने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो आर्मी ने प्रोवाइड किया है। तो मैं यही कहूँगा कि आर्मी का ये अच्छा इनिशिएटिव है। इस तरह के अगर इनिशिएटिव होते रहें अलग अलग गेम्स में, तो हमारे यहाँ के जो दूर दराज के प्लेयर हैं जिनको सीखने के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। 8 रोज तक जारी रहने वाले इस टूर्नामेंट में सभी टीमों ने खेल के हकीकी जज्बे का मुजाहिरा किया और कोई भी टीम कभी भी इस जज्बे से दस्तबरदार नहीं हुई, जिसकी वजह से पुंछ के नौजवानों में काफी जोश व जज्बा देखने को मिला। इख्तितामी तकरीब में फौज और सिविल इंतजामिया के आला ओहदेदारों ने शिरकत की और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की।
भारत के स्किन केयर मार्केट यानी जल्द की देखभाल और बेहतरी की मसनूआत वाली सनत दुनिया की 5 बड़ी स्किन केयर मार्केटों में से एक है और हालिया बरसों में इस सनत के फैलाव में मज़ीद इजाफा हुआ है। नई सरमायाकारी से वादी कश्मीर में भी ये सनत तेज़ी से फ़रोग पाने लगी है, जिसकी वजह से कश्मीरी नौजवानों के लिए भी रोज़गार के नए वसाइल पैदा हो रहे हैं। ये सेक्टर कैसे फ़रोग पा रहा है, मज़ीद जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। कश्मीर में कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से फ़रोग पा रहा है और बढ़ता हुआ ये सेक्टर नौजवानों के रोजगार के लिए एक अमल अंगेज साबित हो रहा है। सनती मरकज ज़ुकूरा श्रीनगर में वाक़ा आज़ियन फॉर्मेशन उन यूनिट्स में से एक हैं जो नौजवानों को मुख्तलिफ करियर के रास्ते तलाश करने और ब्यूटी एंड स्किन केयर मसनूआत के शोबे में कीमती तजुर्बा हासिल करने के मौके फराहम कर रहे हैं। ये हमारी कश्मीर का पहला GMP सर्टिफाइड पर्सनल केयर एंड कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और हमारे प्रोडक्ट जो है एस्ट्राज अम्ब्रेला ब्रांड एस्ट्राज के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। तो एस्ट्राज की जो हमारी कोर फिलॉसफी है और एस्ट्राज ब्रांड जो है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रेडिशन प्लस मॉडर्निटी। तो इसमें हमारे काफ़ी सारे रेंज आते हैं कॉस्मेटिक में भी और पर्सनल केयर में भी, जैसे फेस वॉशेस आते हैं, सीरम्स आते हैं, शैम्पूज़ आते हैं और हमारे कुछ और भी प्रोडक्ट्स है जैसे ग्लिसरीन है, एलोवेरा बेस्ड जेल्स है हमारे पास और फेस क्रीम्स है। आज़ियन फॉर्मेशन कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इस यूनिट में ब्यूटी एंड स्किन केयर की मुख्तलिफ मसनूआत तैयार की जाती हैं। ये यूनिट खित्ते के दीगर लोगों के साथ साथ न सिर्फ ब्यूटी एंड स्किन केयर में करियर के मतनू रास्ते पेश कर रहा है बल्कि इक्तिसादी तरक्की को भी आगे बढ़ाने में अपना कलीदी किरदार अदा कर रहा है। यहाँ एस्ट्राज ब्रांड के तहत कॉस्मेटिक मसनूआत तैयार की जाती हैं। ये तो सबसे पहले हम लकी है, सब कुछ यहीं पे पहली कंपनी है GMP अप्रूव्ड है जहाँ पे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनते हैं। इससे पहले यहाँ पे थे ही नहीं ऐसे कंपनीज, इसलिए हमें बाहर जॉब करना पड़ता था। दैट इज़ वाई यहाँ पे एक कंपनी खुली है, इससे हम भी खुश हैं। यहाँ पे हम अपना जॉब कर रहे हैं और वीकली हम घर भी जाते हैं। दैट हमारे लिए सब कुछ है वो। तो कितने यूथ को फ़ायदा मिला है? यूथ को तो बहुत ही फ़ायदा हुआ है इससे, क्योंकि जॉब मिली यहाँ पे उनको। फॉर एग्जांपल अभी हमारे यहाँ पे 40-45 एम्प्लॉयज़ है, वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। प्लस अपने जो भी फ्यूचर में हम जब तरक्की करेंगे और भी एम्प्लॉयमेंट यहाँ कर लेंगे हम, वो सबके लिए फ़ायदा ही होगा। वादी कश्मीर में सरमायाकारी में इजाफे के साथ झेली सन्नतें फल फूल रही हैं, जबकि ये सन्नतें रोजगार के वसाइल को बढ़ा रही हैं और जम्मू कश्मीर के समाजी व इक्तिसादी मंजरनामे को बुलंद सतह पर पहुंचा रही हैं। इस यूनिट के जिम्मेदारों का कहना है कि ये कश्मीर वादी में अपनी नौइयत का पहला यूनिट है जो रोजगार के नए रास्ते खोल रहा है। मैं आज फार्मेसी में काम करता हूँ। मैं यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में हूँ। जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ बनते हैं उनकी क्वालिटी में चेक करता हूँ। आफ्टर क्वालिटी जब मैं चेक करता हूँ उसके बाद ही हम रिलीज़ उनको करते हैं। मतलब क्वालिटी के बगैर हम क्वालिटी टेस्टिंग के बगैर हम रिलीज़ नहीं करते किसी भी प्रोडक्ट को। और हमारे लिए ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि ऐसे प्लांट यहाँ पे डेवलप हुए हैं जो कश्मीर में पहली बार, ये एक पहला प्लांट है कश्मीर में जो कॉस्मेटिक्स प्लांट है। वादी कश्मीर में प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग तक ये सेक्टर एंटरप्रेन्योरशिप को परवान चढ़ा रहा है और जिद्दत तराजी के कल्चर को फरोग दे रहा है। इस इक़दाम से उन कश्मीरी नौजवानों के लिए एक रोशन मुस्तक़बिल के अज़म का इजहार हो रहा है जो कॉस्मेटिक्स सेक्टर में फायदेमंद करियर के ख्वाहां हैं। जम्मू कश्मीर के सरहदी व पहाड़ी ज़िला राजौरी की गुजरान पंचायत में सरहदी देहात में रिहाइश पजीर लोगों की सहूलियत के लिए CRPF ने स्विक एक्शन प्रोग्राम के तहत एक तिबी कैंप मुनक्किद किया। मुख्तलिफ अमराज के डॉक्टरों ने लोगों की बड़ी तादाद जिनमें ख़वातीन भी शामिल थी का तिबी मुआयना किया। लोगों में बीमारियों के मुताबिक अद्वियात भी तकसीम की गई। लोगों ने CRPF के इस इक़दाम को काफ़ी सराहा।
जम्मू कश्मीर के सरहदी व पहाड़ी जिला राजौरी के गुजरान पंचायत में सरहदी देहात में रिहाइश पजीर लोगों की सहूलियत के लिए CRPF ने एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। ये तिब्बी कैंप CRPF की जानिब से चलाए जा रहे सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुनाकिद किया गया। इस कैंप में मुख्तलिफ अमराज के मौलिजीन ने लोगों का तिब्बी मुआयना किया और उन्हें बीमारियों के मुताबिक अद्वियात तफवीज़ की। यहाँ हर किस्म की परेशानी होती है, मुश्किल होती है राजौरी जाने के लिए, कभी गाड़ियाँ नहीं मिलती, कभी डॉक्टर नहीं मिलते, तो इसलिए हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद करते हैं कि यहाँ आए और इन्होंने अच्छे तरीके से हमको दवाई दी और हमारा इलाज कराया। हमारी माँ बहनें जो भी बेटियाँ आई हैं उनको अच्छे तरीके से देखा है, पर्चियाँ काटी हैं और बाद में उनको दवाई भी फ्री में फराहम कर दी है। इस तिब्बी कैंप का बुनियादी मकसद देहात के लोगों, खास तौर पर सरहदी आबादी को तिब्बी इमदाद फराहम करना है। कैंप के दौरान बुजुर्ग खवातीन, बच्चों के अलावा माजूर अफराद के इलाज और मुआलजे के लिए खसूसी इंतजामात किए गए थे। मज़कूरा पंचायत में तिब्बी कैंप मुनाकिद करने पर लोगों ने CRPF का शुक्रिया अदा किया। यूं ही हमने कल से सुना कि यहाँ हमारे CRPF के जवान यहाँ आ रहे हैं, कमांडिंग ऑफिसर आ रहे हैं दवाई देने के लिए, तो आया मैंने मेरे को दवाई दी तो बहुत हेल्प होगी मेरे को। यहाँ से राजौरी जाने के लिए 10 किलोमीटर है तो बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है जाने के लिए, तो ये दवाई कम से कम हमें अगर प्राइवेट से लेनी पड़ती है 200-300 की मिलती है ज़रूर, तो 200-300 की अगर गरीब की हेल्प हो जाती है तो बहुत बढ़िया हमारे लिए। गरीब लोग हैं सर, तो मैं इनका बार बार थैंक्स और शुक्रगुजार हूँ हमारे CRPF जवानों का। CRPF के एक आला अफसर ने बताया कि मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के गुजरान पंचायत के दूर दराज देहात के लोगों की परेशानियों को देखते हुए किया गया। इस तिब्बी कैंप के दौरान डॉक्टरों ने मकामी लोगों की मुफ्त जांच के बाद मरीजों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की। ऐसे जगह पर पहाड़ों में जो महिलाएं होती है वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है और उनको कई चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है। जैसे नेचुरली आप देखेंगे या तो खून की कमी शुरू हो जाती है, कई सारी बीमारियां हैं जो कि वो बताती भी नहीं हैं। और यहाँ हमने जो मेडिसिन है उसमें उन्हीं को देखते हुए यहाँ मेडिसिन लाए हैं। मल्टी विटामिन्स है, खून की कमी ना हो उसके लिए भी ध्यान रखा गया है। पहाड़ी इलाके हैं, लोगों को दर्द वगैरह भी होते हैं, घुटने वुटने की प्रॉब्लम, एलर्जी की परेशानियाँ होती है, वो सब चीज़ें इनमें देखी गई है। और यह हेल्थ चेकअप भी हो रहा है साथ साथ, ताकि यहाँ कोई दिक्कत होती है तो उनको फर्दर जो आगे GMC और वहाँ भी रेफ़र करने के लिए इनको इलाज के लिए। इसके अतिरिक्त मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि मेडिकल कैंप के अतिरिक्त भी अगर ये लोग कभी भी हमारे कैंप में आकर के भी दिखाना चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ मेडिकल वहाँ भी हमको प्रोवाइड करते हैं। इस मेडिकल कैंप के दौरान मकामी लोगों के मेडिकल चेकअप के लिए CRPF में तैनात डॉक्टरों के अलावा सिविल डॉक्टरों, जिनमें आँख, कान और ख़वातीन अमराज की डॉक्टर शामिल थी, की खिदमत भी हासिल की गयी। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा? आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। इंशाल्लाह आइंदा शुमारा लेकर फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।